Hello everyone, welcome back. So in the last lecture, we were discussing the simplification. Okay, we have seen how do we simplify, how do we simplify the operations, how do we simplify the expressions involving the rational and irrational numbers together. Okay, uh, we have seen some operations on real numbers. Okay, how do we add the rational number into rational number with an irrational number, okay, or two irrational numbers. We have discussed that. Also we discussed about the sets. How do we simplify the sets? Okay, uh, I have given some standard results. The standard results, I hope you have practiced enough on the standard results. For example, root a into root b is square root of ab. Root a into root a is a. Okay, now in today's class we will be starting with a very important concept, the concept is rationalization. Okay, see, rationalization is the part of the simplification, and we will be using this rationalization in the calculation. See, so topic we are going to start is rationalization. As you can see, the heading is rationalization. Now students, what is rationalization? Rationalization is basic process of making the denominator of an expression a rational number. We don't want irrational numbers in the denominator. तो हम करते क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर अगर irrational number आता है तो हम डिनोमिनेटर को rational बना लेते हैं. So the process of converting the denominator of an expression, okay, to an equivalent expression, उसको हम एक equivalent expression बना लेते हैं जिसमें irrational number को तो हटाकर हम उसको rational में convert कर देते हैं. सिंपल सी डेफिनेशन है, the process of converting the denominator of a fraction into a rational number with an equivalent expression. Equivalent क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हम एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करेंगे, हम एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ये हमको पता है. तो हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे या ऐसे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से इररेशनल पार्ट बिल्कुल खत्म हो जाए. डिनोमिनेटर में अब रैशनल पार्ट ही रहना चाहिए. ठीक है, चलो एग्जांपल से समझेंगे. डेफिनेशन हालांकि एग्जाम्स में पूछी नहीं जा सकती है, बट आप लिख सकते हैं व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन इज इररेशनल, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट अ रैशनल, rational form. Okay, the process of making the denominator a rational number of the equivalent expression is rationalization. Okay, let us not discuss the definition part. Actually we have to discuss the process of rationalization, and we will be using that process. Okay, so see, let us start with the process of rationalization. See, let me take some standard forms. For example, I am taking 1 upon square root of a, and I want to eliminate this square root of a in the denominator. Because square root of a, whenever a is a non-perfect square, it's an irrational number. Is that clear? क्योंकि हमने ये पढ़ा था, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उसके स्क्वायर रूट हमेशा इररेशनल होते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इस स्क्वायर रूट ऑफ ए को रैशनल बनाना चाहता हूं तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ सेम नंबर, रूट ए एंड रूट ए. ओके, सो इससे होगा क्या, देखिए, इससे होगा ये कि रूट ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा रूट ए, और रूट ए जब मल्टीप्लाई होगा रूट ए से, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लास्ट लेक्चर में ही बताई थी, रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, रूट ए इंटू रूट ए हमेशा होता है ए. ठीक है, याद रखें आप अभी के लिए इसको, रूट ए इंटू रूट ए होता है. क्लियर? रूट 5 इंटू रूट 5 5, रूट 6 इंटू रूट 6 6. ओके, अच्छा, रूट ए इंटू रूट बी, स्क्वायर रूट में इनका प्रोडक्ट आ जाता है ए बी. क्लियर? चलिए, इस तरीके से हुआ क्या, ये जो डिनोमिनेटर था जो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए था, अब वो ए बन चुका है. अब स्क्वायर रूट ऑफ ए तो इररेशनल था, जब भी ए एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, बट ए क्या है, ए अब एक रैशनल नंबर है. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे 1 अपॉन रूट 5 को
रैशनलाइज करना होता, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता √5 से, डिवाइड भी कर देता √5 से, तो मुझे आंसर में क्या मिल जाता, न्यूमरेटर में तो √5 इंटू 1 √5 और डिनोमिनेटर में √5 इंटू √5 जब मल्टीप्लाई होता तो मुझे 5 मिल जाता। ठीक है, आई गेस ये तो बहुत बेसिक सी बात बताई है मैंने। ठीक है, चलिए ये मैंने दो एग्जांपल्स लिए और ये बिल्कुल बेसिक रैशनलाइजेशन को डिस्कस करा। अब इसकी अलग अलग फॉर्म्स देखते हैं अपन। ठीक है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स को नंबर दे देते हैं। ये एग्जांपल 1 था, ये एग्जांपल 2 था, ये एग्जांपल 3 देखते हैं कौन है ना। नाउ इन द एग्जांपल नंबर 3, सपोज जो आपका रिजल्ट है वो इस फॉर्म में है 1/a प्लस √b। देखो रूट बी क्या है, रूट बी एक इरेशनल नंबर है, जब भी बी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्लियर। और ए क्या है, ए एक रैशनल नंबर है, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर क्या बनता है, इरेशनल बनता है। लास्ट लेक्चर में ही हमने देखी थी ये चीज। ठीक है, नाउ इस कंप्लीट ए प्लस रूट बी को अब मैं बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरा डिनोमिनेटर है, इसको मैं बनाना चाहता हूं क्या, रैशनल। तो देखना हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस बार। जो ये दो टर्म्स हैं ए और रूट बी, इसके बीच में साइन क्या है, प्लस है, तो हम इस साइन को चेंज कर देंगे। अगर ये प्लस है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस रूट बी से, और सेम नंबर से हमको इस फ्रैक्शन में डिवाइड भी करना पड़ेगा, या यूं कह लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, ए माइनस रूट बी से। देखो यहाँ ए माइनस रूट बी से ही क्यों करा, देखो पहले डिनोमिनेटर में ए और रूट बी के बीच में कौन सा साइन था, प्लस था, तो इस प्लस को हमने माइनस बना दिया। अच्छा अगर यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ ए माइनस रूट बी होता तो हम मल्टीप्लाई करते ए प्लस रूट बी से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, क्लियर। चलिए अब जब मैं ये जो नंबर है जिससे कि मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, इस नंबर को हम एक्चुअली कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर, RF, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, तो देखो क्या मिलने वाला है मुझे, a माइनस रूट बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा a माइनस रूट बी, और अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, फिर भी अभी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से इसको करेंगे। सी हमको पता है ये आइडेंटिटी, हम जब भी a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में क्या आता है, आंसर में आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो व्हेन a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी, these two bracket gets multiplied, so it will become a square minus root b times square minus root b square, क्लियर। I used the same result, बस b की जगह अब रूट बी आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा a माइनस रूट बी upon c, a square is a square as it is, now root b square is going to be b. See, now a square minus b is rational number, okay, because we have eliminated the square root, we have eliminated the irrational part, clear. See, let us take more examples. अच्छा ये जो एग्जाम्पल 3 में मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिए, क्यों ना इसी पर एक न्यूमेरिकल फॉर्म्स का एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल मुझे √3 प्लस 2 को रैशनलाइज करना है। ठीक है, a प्लस रूट बी, रूट बी प्लस ए एक ही बात है ना, मैंने √3 प्लस 2 को रैशनलाइज करना है। तो देखो मैं कैसे करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 माइनस 2 से और डिवाइड भी कर दूंगा √3 माइनस 2 से। अब पहला क्वेश्चन ऐसा ही क्यों किया बेटा, ऐसा ही इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर में आप देखो √3 और 2 के बीच में कौन सा साइन है, √3 और 2 के बीच में है हमारा प्लस साइन। ठीक है, तो हम इस साइन को चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस बना देंगे। ठीक है, तो जब हमने इस साइन को चेंज करा तो न्यूमरेटर में आ गया √3 माइनस 2, 1 से मल्टीप्लाई होकर यही बनेगा √3 माइनस 2। अच्छा डिनोमिनेटर की बात करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज गोइंग टू बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, द सेम थिंग। ओके, वी फॉलोड देयर, सो इट्स गोइंग टू बी सी। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप इसके आगे लिख लूं, ओके चलो नीचे लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। जो नेक्स्ट स्टेप बनने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप बनेगा सी √3 माइनस 2 अपॉन √3 स्क्वायर इज व्हाट 3 एंड 2 स्क्वायर इज व्हाट 4। मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। ओके, सी इट्स √3 अपॉन 3 माइनस 4। नाउ इफ आई सिंप्लीफाई फर्दर, मैं इसके आगे ही इसका नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या बनने वाला है ये, इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो बनने वाला है सी √3 minus 2 and in the denominator 3 minus 4 is going to be -1. If I subtract
4 from 3, I'll be getting the -1 na. So now see, -1 we don't want नेगेटिव डिनोमिनेटर. ओके, तो मैं इस -1 को न्यूमरेटर में शिफ्ट करना चाहता हूँ. ठीक है, दो तरीके हैं. एक तो मैं डायरेक्टली माइनस से इस पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर एक इस तरह भी समझ सकते हैं अपन कि डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दूं मैं. ठीक है, तो इस -1 को, ये जो डिनोमिनेटर में है, मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहा हूँ. ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये -√3 - 2 बन जाएगा. देखो इसमें आप गलती ना करें, ये ब्रैकेट का ध्यान रखें आप. ऐसा नहीं हो आप केवल माइनस को √3 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से मल्टीप्लाई ना करें. ठीक है ना. अब ये जो नेगेटिव साइन था जो डिनोमिनेटर में था, ये अब न्यूमरेटर में शिफ्ट हो चुका है. ठीक है ना. अच्छा, अब अपॉन 1 लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, डिनोमिनेटर में 1 लगाने की जरूरत हमको एक्चुअली होती नहीं है. ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो रैशनलाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अब 1 आ गया है और 1 तो एक रैशनल नंबर है ना. तो यस, वी कैन से ये कंप्लीट हो चुका है. अब अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो माइनस माइनस प्लस का तो हो जाएगा 2 और माइनस का हो जाएगा √3. ये हमारा आंसर है. क्लियर. ये एक और बेसिक सा एग्जांपल लिया है हमने. 2 - √3 इसका रैशनलाइजेशन के बाद आंसर है. ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो 2 - √3 है वो 1/√3 + 2 के इक्वल ही है एक्चुअली. ठीक है, हमने रैशनलाइजेशन करके बस इसकी फॉर्म चेंज कर दी है. और फॉर्म भी कैसे चेंज करी है? हमने जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को क्या बना दिया है? रैशनल नंबर बना दिया है. इर्रेशनल नंबर को वहां से हमने एलिमिनेट कर दिया है. ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं और एग्जांपल्स. द मोर एग्जांपल्स वी विल बी टेकिंग बेस्ड ऑन दी see this concept. Now let me take a question. Suppose I have to rationalize example. Suppose I have to rationalize this 1/√7 + √5. See, this is the another form. In this form, both of these denominators or both of these terms, √7 and √5, okay, are the irrationals. Okay, so don't worry, the concept will be same. I will be multiplying numerator and denominator with the expression with in opposite साइन. ओके, जो √7 + √5 था उसके बीच में प्लस का साइन था, तो मैंने जो साइन है प्लस की जगह अब माइनस ले लिया. ये याद रखें आप, रैशनलाइजेशन फैक्टर जो है वो क्या लेना है. ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ? सी 1 जब मल्टीप्लाई हुआ √7 - √5 से, तो यही बन गया सी √7 - √5. नाउ डिनोमिनेटर अगेन आइडेंटिटी a + b a - b, अगेन आइडेंटिटी a + b a - b, एंड इट्स गोइंग टू बी व्हाट? a² - b². so it's a² - b². clear. now if I simplify this, it will be equal to √7 - √5. see, √7² is 7 and √5² is 5. okay, we know √a into √a, √a² is a. okay, मैंने बता दिया ये आपको पहले. तो ये बनेगा √7 - √5 अपॉन, सी 7 - 5 is going to be 2. ओके, नाउ इस 2 को मैं सेपरेट कर सकता हूँ. तो अगर मैं इस 2 को सेपरेट करता हूँ तो ये बनेगा √7/2 माइनस √5/2, या फिर आप इससे पहले वाले एक्सप्रेशन में भी छोड़ सकते हैं आंसर. ये हमारा सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हुआ, रैशनलाइजेशन. ठीक है, ये हमने एक और क्वेश्चन लिया. चलिए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे उतने ही ज्यादा आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी. और एग्जाम्पल लेते हैं. सी एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन इस तरीके का. देखिए, सपोज 2 + √3 है और डिनोमिनेटर में 2 - √3 है. ठीक है ना, एंड वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू we want to rationalize this expression. actually what we basically want, we don't want the irrational numbers in the denominator, and we know 2 - √3 is actually an irrational number, and we want to eliminate the irrational number. so see, here I will be multiplying with the same 2 + √3 and 2 + √3. हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + √3 से. अच्छा, 2 + √3 से ही क्यों किया? देखो, डिनोमिनेटर में माइनस था ना, 2 - √3 था ना, तो हम इसको 2 + √3 से करेंगे. मान लो डिनोमिनेटर में 2 + √3 होता
तो हम 2 माइनस रूट 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं, ठीक है ना, ठीक है, उनके बीच का साइन आपको जरूर चेंज कर देना है, क्लियर। और यही हमारा बन जाएगा व्हाट, रैशनलाइजिंग फैक्टर, RF रैशनलाइजिंग फैक्टर, ओके। चलो अब इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर क्या खास बात है, अब यहाँ पर न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दो इर्रेशनल नंबर्स हैं, 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। तो अब जब ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्योंकि ये सेम ही नंबर है तो क्या मैं इनके ऊपर होल स्क्वायर लगा दूं, कोई कंफ्यूजन? वी नो ना a इंटू ए इज ए स्क्वायर, सो 2 प्लस रूट 3 को अगर आप 2 प्लस रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक्चुअली 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर ही तो बनेगा, a इंटू ए इज ए स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी देखो आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो कोई कंफ्यूजन? नो, नॉट एट ऑल। सी नाउ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ डू यू नो व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ दिस a प्लस बी होल स्क्वायर? आई होप आपको पता होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होता है। हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने इसको भी एज एन स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिया था, याद है? लास्ट लेक्चर में हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी थी। चलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होने वाला है a स्क्वायर, सी a स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू रूट 3 है, प्लस बी स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, ओके, अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ 2 स्क्वायर इज 4 एंड रूट 3 स्क्वायर इज 3। कैन आई राइट डायरेक्टली नाउ? आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। नाउ सी what it's going to be, 2 square is 4 and this root 3 square is 3. So can I add these two directly because this is rational, 2 square 4 is rational, root 3 square 3 is rational. So if I add 4 and 3 it will be 7, 4 plus 3 7, okay. Now in the middle term 2 to the 4 and root 3, so I will be multiplying it and the result will be 4 root 3. देखो भाई, मैंने पहले ही बताया था, आप रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दो और इर्रेशनल नंबर को एज इट इज रख दो अगर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो। जैसे 2 मल्टीप्लाई हो गए 4 बन गया, 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई हो गया सिंपल 4 रूट 3 बनेगा, ठीक है। रैशनल इर्रेशनल नंबर्स को साथ में लिख देने का मतलब ये है कि हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, क्लियर। नाउ 4 माइनस सी डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 1 बनेगा। सो माई आंसर इज गोइंग टू बी 7 प्लस 4 रूट 3। आप चेक कर सकते हैं जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन चुका है, अब डिनोमिनेटर अब जो है वो रैशनल बन चुका है, 1 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं, जितने ज़्यादा एग्जांपल्स लेंगे उतना ही हमारे को कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। लेट मी टेक मोर एग्जांपल्स, ओके। सी सपोज आई हैव टू रैशनलाइज दिस 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2। देखो अब ये थोड़ा मैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट अगर इस तरीके के क्वेश्चंस कर लिए तो फिर जो सिंपल एक्सप्रेशन आते हैं वो आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 एंड इन द डिनोमिनेटर आई एम टेकिंग दिस नंबर रूट 48 प्लस रूट 18, ठीक है। नाउ आई हैव टू रैशनलाइज दिस। देखो रैशनलाइजेशन तो हम कर लेंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली चीज है कि ये जो रूट 48 है और ये जो रूट 18 है, क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है क्या? नहीं, ये अभी फैक्टराइज हो सकते हैं। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, अगर फैक्टराइजेशन हो सकता है तो फैक्टराइज करें। तो पहले हम रूट 48 को फैक्टराइज कर लें, बेटर होगा। नाउ रूट 48 का फैक्टराइजेशन क्या बनेगा? देखो रूट 48 को आप फैक्टराइज करना, प्राइम फैक्टराइज करना, आपको मिलेगा 2 की पावर 4 इंटू 3। 2 की पावर 4 को हम लिखते हैं 16 और 16 होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने 48 को ऐसे फैक्टराइज कर दिया कि प्रोडक्ट में एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया मुझे, ठीक है। नाउ देखो 16 इंटू 3 48 होता भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ जब ये स्क्वायर रूट जो है ये सेपरेट होगा 16 पर और 3 पर, तो ये ऐसे बनेगा, देखो रूट 16 इंटू रूट 3। नाउ रूट 16 क्या बनेगा? रूट 16 बनेगा 4, तो एक्चुअली ये 4 रूट 3 के इक्वल है, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं रूट 18 की, तो देखो रूट 18 का फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो ये बनेगा 9 इंटू 2 और रूट 9 होता है कितना? 3, तो 3 रूट 2 एक्चुअली फॉर्म बनने वाली है। तो
अब मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूंगा पहले। ओके चलिए, तो 4√3 प्लस 5√2 और डिनोमिनेटर को मैंने √48 को तो लिख दिया 4√3। ओके, √48 बोलो 4√3 बोलो एक ही बात है, ठीक है। √18 की सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने क्या लिखी, 3√2 लिखी। नाउ ये मैंने कन्वर्ट चेंज कर दिया, समझ में आया, मतलब एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। चलो ये जो मैंने करा है इसको मैं रब कर देता हूँ, ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। नाउ अब हमको करना क्या है, अब हमको करना है रैशनलाइज किसको, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको 4√3 प्लस 5√2 अपॉन 4√3 प्लस 3√2, ठीक है, इसको रैशनलाइज करते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन ये होता है कि अब किससे मल्टीप्लाई करें, मतलब हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होने वाला है। देखो मल्टीप्लाई का मतलब है, यहाँ बीच में मैंने डॉट का साइन लगा दिया, ठीक है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में बीच में प्लस साइन है ना, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे और इसका जो साइन है वो बदल देंगे, मतलब अगर प्लस साइन है तो माइनस कर देंगे, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो 4√3 माइनस 3√2 बन जाएगा ये जो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। अच्छा, जिससे मल्टीप्लाई करा है उससे डिवाइड भी करना है एक्सप्रेशन में, क्लियर। तो क्या बनेगा 4√3 माइनस 3√2। लेट मी एक्सप्लेन अगेन, ये जो डिनोमिनेटर है 4√3 प्लस 3√2, तो इसके जो दो टर्म्स के बीच में साइन है, अगर ये साइन प्लस का है तो आप इसको माइनस का बना दो, अगर ये साइन माइनस का है तो इसको प्लस बना दो, ठीक है। और मल्टीप्लाई भी करो जिससे उसी से डिवाइड करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करो, या तो यू कह दो या पूरे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई और डिवाइड जिससे कर रहे हो आप, वो एक्सप्रेशन जो है वो सेम ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर आती हैं कैलकुलेशंस। नाउ इन कैलकुलेशंस को करने के लिए हमको जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था ना, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए लेते हैं। हमको फर्स्ट ऑफ ऑल इस न्यूमरेटर के दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे न्यूमरेटर के दो ब्रैकेट, पहले ये जो 4√3 है, फर्स्ट ब्रैकेट का जो पहला वाला एक्सप्रेशन टर्म है 4√3, ये इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा 4√3 टाइम्स 4√3 माइनस 3√2, ठीक है। फिर जो 5√2 है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, कंप्लीट एक्सप्रेशन से, मतलब 4√3 माइनस 3√2 से, क्लियर। और अगर मैं बात करूं डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, डिनोमिनेटर में तो वही फॉर्म आ गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आ गई, तो इसको लिखेंगे अपन अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखते जाइए आप सिंप्लीफिकेशन। सी नाउ अब 4√3 को इस फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें पहले, तो 4√3 मल्टीप्लाई होगा 4√3 से, 4√3 जब 4√3 से ही मल्टीप्लाई होगा तो एक तरीके से 4√3 का स्क्वायर ही तो हो रहा है, और 4√3 का स्क्वायर क्या होता है 48। अभी तो हमने देखा 4 का स्क्वायर, देखो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ इस चीज को रफ में, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4√3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4√3 से, या तो ऐसे बोलो या इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं ऐसे बोलो, एक ही बात है। तो होता क्या है, रैशनल से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 मल्टीप्लाई हो गए 16, और √3 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना 3, तो अल्टीमेटली माय आंसर इज गोइंग टू बी 48। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर। ओके, सो 4√3 इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू यू विल गेट 48। नाउ अब ये 4√3 इससे तो मल्टीप्लाई हो गया, अब 4√3 मल्टीप्लाई किससे होगा 3√2 से। चलिए तो 4√3 को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3√2 से। सी रैशनल जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 3 12, और ये जो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये √6 बनेगा। कैसे, हमने पढ़ा था ना √a इंटू √b हमेशा रूट में ab के इक्वल होता है, क्लियर। तो √2 इंटू √3 √3 इंटू 2 के इक्वल हो गया। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें, आई होप यहाँ तक आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। नाउ ये रहा हमारा सी। नाउ अब मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर करके लिखता हूँ, आपको ये मैंने समझा दिया है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। नाउ 4√3 बना 48, 4√3 को जब मैंने मल्टीप्लाई करा 3√2 से, ठीक है, तो 4 3 12 एंड √3 इंटू √2 अभी अभी हमने देखा √6। नाउ सिमिलरली आप यहाँ देखें 5√2 मल्टीप्लाई होगा 4√3 से, क्या बनेगा 5 4 20 एंड √2 √3 √6।
नाउ 5√2 जब माइनस के 3√2 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो प्लस माइनस साइन आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस होते हैं मल्टीप्लाई में। नाउ 5 3 जा 15। अच्छा अब एक बार वापस देखो यहाँ रफ में, जब मैं 5√2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3√2 से तो क्या आएगा, 5 3 जा 15 एंड √2 इज 2, सो माई आंसर इज गोइंग टू बी वॉट 30। ठीक है, सो 5√2 को जब मैं माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 30। ओके, देखो दो इर्रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट रैशनल आ रहा है और हमने बताया था दो इर्रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो रैशनल भी आ सकता है तो इर्रेशनल नंबर्स भी आ सकता है। इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब इसका फाइनल आंसर लिखने का टाइम आ गया है। ठीक है, सी, सो इट्स गोइंग टू बी 48 माइनस 30। ये दोनों रैशनल है, इनको सॉल्व कर ले पहले। 48 माइनस 30, वेट इससे पहले डिनोमिनेटर लिख लें एक बार। 4√3 का स्क्वायर 48, अभी अभी हमने बताया था 4√3 का स्क्वायर 48 होता है और 3√2 का स्क्वायर क्या होता है 18 होता है। चलिए नाउ 48 माइनस 30, अगर न्यूमरेटर की बात करें तो 48 माइनस 30 कितना होने वाला है, 48 माइनस 30 होने वाला है 18। क्लियर। नाउ 20√6 माइनस 12√6, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने ये चीज कि ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स है, इरेशनल नंबर्स जिनमें इन्वॉल्व हो रहा है। देखो ये भी √6 है, ये भी √6 है, तो 20√6 में से 12√6 को मैं माइनस कर सकता हूँ, इजीली माइनस कर सकता हूँ। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा प्लस का 8√6। अच्छा ये √6 की जगह अगर √5 होता तो माइनस नहीं होता। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है कब हम माइनस कर सकते हैं कब नहीं कर सकते। ठीक है, सो 20√6 माइनस 12√6 इज 8√6 and in the denominator 48 minus 18, 48 minus 18 is going to be what, 30. Now see, I can write one more step. See, my answer is 18 plus 8√6 upon 30. Now students, can I separate the denominator? Yes, let me separate this denominator. So it will be 18 upon 30 plus 8 upon 30 √6. Okay, now if I simplify this, okay, you can see 6 3s are 18, so it is equal to what, 3/5. Okay, and this is actually 4/15, 4/15 √6. So either you can leave the answer in this form, or if you want to मेक द 15 एलसीएम, अगर आप 15 को एलसीएम लेके लिखना चाहें तो एक ही बात है, देखो आप यहाँ तक भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। अच्छा आप ये भी कर सकते थे कि इस 18 और 8 में से कॉमन निकालें, बट मैं आगे और क्वेश्चंस ले लेके आपको वो अलग अलग मेथड्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन बताता रहूंगा। अभी अगर मैं इसको 15 को एलसीएम ले फर्दर तो मुझे जो फाइनल आंसर मिलने वाला है वो इस फॉर्म में मिलने वाला है। देखो 9 प्लस 4√6 अपॉन 15। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, मैंने कुछ नहीं करा है, 15 को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करा है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ जो कि रैशनलाइजेशन पे बेस्ड था और ये क्वेश्चन आप मान के चलें 3 मार्क्स में एग्जाम्स में आना बनता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है इन 3 मार्क्स। चलिए लेट अस टेक मोर क्वेश्चंस, ओके, बिकॉज एज आई टोल्ड एज मेनी एज क्वेश्चंस वी विल सॉल्व, वी विल बी इम्प्रूविंग आवर कैलकुलेशंस। ओके, तो कैलकुलेशंस इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। चलिए स्टूडेंट्स एक अलग तरह का क्वेश्चन लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कई आते हैं। क्वेश्चन जो मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है, सपोज यू आर गिवन दैट 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2, 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2, ये जो फ्रैक्शन है, ओके, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन इक्वल है a प्लस b√2 के, और आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b वेयर a एंड b आर रैशनल नंबर्स। हमको ये गिवन है कि a और b जो है रैशनल नंबर्स है और आप a और b की वैल्यूज निकालें। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ओके, in this kind of questions what we do basically, we just rationalize the left hand side, okay, and right hand side we will copy the same। okay, तो देखते जाइए 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ। नाउ रैशनलाइजेशन अब आपको समझ में आ चुका है, किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे,
3 प्लस रूट टू से, और डिवाइड भी किसी से करना पड़ेगा, 3 प्लस रूट टू से। ये कर दिया मैंने, 3 प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगा दिए ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड में कोई छेड़छाड़ नहीं, राइट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी करते चलें। अच्छा, सी ए प्लस बी, ए प्लस बी, अभी अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन दिखाया था, तो ये बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, and in the denominator it is a minus b into a plus b, so it's going to be a square minus b square. Okay, so can I write directly now? See, a square means 3 square 9, okay, and root 2 square is 2. मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख लिया है, आई होप समझ में आ गया होगा। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 9 माइनस 2 बन गया। अच्छा, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है a प्लस बी रूट 2 के। क्लियर? चलो ये नेक्स्ट स्टेप देखिए, 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस रूट 2 स्क्वायर, रूट 2 स्क्वायर डायरेक्टली 2, एंड 9 माइनस 2 इज गोइंग टू बी व्हाट, 7 इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी रूट 2। मैंने कहा राइट हैंड साइड को तो एज इट इज कॉपी करते, चलो इसको तो लास्ट में देखेंगे अपन, ठीक है। नाउ सी 9 प्लस 2, they can be added 11, and 2, 3 and root 2, when these three terms will multiply, the answer is 6 root 2, 2 3 is 6, and root 2 as it is irrational, okay, and it's like this, 11 plus root 2 upon 7 is equal to a plus b root 2. Now in the next step what you have to do, you have to just separate the 7, मतलब डिनोमिनेटर को आपको सेपरेट कर देना है। तो हम यहां पहुंच गए, a प्लस बी रूट 2। स्टूडेंट्स यहां तक क्या करा है, यहां तक केवल लेफ्ट हैंड साइड का रैशनलाइजेशन करा है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड जो 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 थी, उसका हमने इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिखा है। क्या कन्वर्ट कर दिया उसको, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया 11 अपॉन 7 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7 में। ओके, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट इज how to find the values of a and b. You just need to compare the both sides. Okay, comparing both sides, आप दोनों साइड्स को बस कंपेयर कर लो, ठीक है। देखो, जहां यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 11/7 लिखा है, वहां जो राइट हैंड साइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट टर्म है वो 11/7 है, ओके, जो कि रैशनल नंबर है, और राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर a लिखा हुआ है जो कि एक रैशनल नंबर है। तो अगर हम इसकी दोनों के फर्स्ट टर्म्स को कंपेयर करें तो हमको a की वैल्यू मिलती है 11/7। क्लियर? अच्छा, अगर मैं सेकंड टर्म्स को कंपेयर करूं जो कि इररेशनल है, क्योंकि ये एक्चुअली एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक रैशनल नंबर एक इररेशनल नंबर में ऐड हो रहा है, इस कंप्लीट को हम एक इररेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं सेकंड टर्म्स को कंपेयर करूं तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है 6/7 टाइम्स रूट 2, किसके इक्वल, b टाइम्स रूट 2 के। नाउ देखो, रूट टू दोनों तरफ से कैंसिल हो सकते हैं, दोनों चीजें इक्वल है, प्रोडक्ट में है, मतलब आप देख सकते हो ये रूट टू कैंसिल हो सकते हैं, या आप यूं समझ लो कि इस रूट 2 को मैं डिनोमिनेटर में ले गया तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होकर 1 बच गया, कैसे भी समझो एक ही बात है। तो 6/7 वैल्यू आ गई किसकी, b की, सो द वैल्यू ऑफ b इज गोइंग टू बी 6/7। सो क्वेश्चन केवल था तो रैशनलाइजेशन का, बस इसने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, इसके अंदर एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लगा दिया a प्लस बी रूट 2 का, और a और b की हमको वैल्यूज पूछ ली, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हुआ हमारा एक और क्वेश्चन। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज ऐसा क्वेश्चन आया, रूट 7 माइनस 1 अपॉन रूट 7 प्लस 1, okay, and we have to solve this. Let me write the question completely, and we have to calculate the values of a and b. थोड़ा सा अपन ने और मॉडिफाई कर दिया है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक टर्म है पूरा, मतलब ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, और इनके बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। और हमको ये पूरे जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल दे रखा है किसके, a प्लस बी रूट 7 के, और आपको a और b की वैल्यूज बतानी है। क्लियर? तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखो दो मेथड है। एक मेथड तो है कि हम इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली रैशनलाइज करके सॉल्व करें,
ठीक है, तो मैं पहले मेथड 1 से ही बात करता हूँ। मेथड 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों टर्म्स का रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ। तो देखिए रैशनलाइजेशन कब कब जरूरी है, जब जब डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर्स हैं, आप देख सकते हो। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर √7 - 1 से, और मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा √7 - 1 से। So what I did actually, I multiplied numerator and denominator with the rationalizing factor, that is √7 - 1. Okay. अच्छा, सेम चीज मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो है वो टर्म्स जो है वो दो दो हैं, तो उसी अकॉर्डिंगली मुझे सॉल्व करना है। सी नाउ राइट हैंड साइड में अपन को कोई चेंजेस नहीं करने, राइट हैंड साइड को तो एज इट इज कॉपी करो। नाउ स्टूडेंट, a - b ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर। अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है ना, जहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बन रहा था। नाउ सी डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b बनेगा a² - b²। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, √7 का स्क्वायर होता है 7 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 7 - 1 बनेगा। ठीक है, सी माइनस का साइन, यहाँ पर a + b a - b यहाँ पर बनने वाला है, सॉरी आई हैव टू टेक इट पॉजिटिव। ओके, सी इन द सेकेंड टर्म इट वॉज √7 - 1, तो आई विल मल्टीप्लाई विथ √7 + 1। सी रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। ठीक है, √7 + 1, क्लियर। नाउ सी इन द न्यूमरेटर पार्ट इट्स गोइंग टू बी √7 + 1 होल स्क्वायर। Okay, and in the denominator it's going to be a - b a + b, that means a² - b². It's going to be a² - b². Okay, so again 7 - 1, no problem. See, 7 - 1 is what, 6. So let me write it, √7 - 1 whole square upon 6 minus √7 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 6। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो 6 है इसको एलसीएम लिया जा सकता है। चलिए, तो 6 को एलसीएम ले लो, या कॉमन भी ले सकते हैं, एक ही बात है। 1/6 को कॉमन ले लो, 6 को एलसीएम ले लो। चलो 6 को एलसीएम लिया तो क्या बना, ये a - b का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा √7 का स्क्वायर 7, फिर b², दैट मीन्स 1 का स्क्वायर + 1। ओके, -2ab, सो -2 a एंड b, क्लियर। स्टूडेंट, यहाँ पर ब्रैकेट का आप खास करके ध्यान रखें, देखो ब्रैकेट की गलती नहीं होनी चाहिए। माइनस यहाँ पर √7 + 1 का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², क्लियर। तो √7² इज 7 + b², 1² इज 1, 2ab मीन्स 2 टाइम्स √7 × 1, क्लियर। नाउ सी यहाँ हम, अच्छा ये चीज जो है वो किसके इक्वल चल रही है, ये इक्वल चल रहा है a + b √7 की। राइट हैंड साइड में हम कोई चेंजेस कर ही नहीं रहे थे, वो हम एज इट इज कॉपी करते चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन इक्वल चल रहा है a + b √7 के, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है अभी तक। सी अगर मैं इसको सॉल्व करूं फर्दर, तो 7 + 1 8 -2 √7। अच्छा, ये जो माइनस साइन है ये इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 7 + 1, ये जो 8 + 2.7 बन रहा है, क्या मैं इसी स्टेप में इसके साइन चेंज कर दूं? ठीक है, या चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 8 - √7 था, बाद में अपन माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। 7 + 1 8 + 2 √7, इस स्टेप में मैंने इसको एज इट इज रहने दिया है, अपॉन में 6 एज इट इज। ओके, एंड ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल चल रहा था राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में चल रहा था a + b √7 के इक्वल। ठीक है, नाउ स्टूडेंट यू कैन ऑब्जर्व दैट व्हेन दिस ब्रैकेट गेट्स ओपन, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, -8 और -2 √7 होगा। ठीक है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 6, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है a + b √7 के। ठीक है, नाउ +8 -8 कैंसिल्ड आउट, -2 √7 -2 √7, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, ये -4 √7 बताया था। लाइक एक्सप्रेशन से इरेशनल से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हम। चलिए,
तो हमको रिजल्ट क्या मिला, हमको रिजल्ट मिला -4√7/6 इक्वल है a प्लस बी रूट 7 के। अच्छा, अब यहाँ पर दो टर्म्स तो हैं ही नहीं, एक ही कंप्लीट टर्म है इस एक्सप्रेशन में, और हमको यहाँ पर कंपेयर करना है यहाँ दो टर्म से। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इच्छा से इसमें एक टर्म जीरो ऐड कर लेंगे, क्योंकि जीरो में अगर हम किसी को ऐड करते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम, अच्छा, इस 4 और 6 को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो अगर मैं इस 4 और 6 को सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बनने वाला है, क्योंकि रैशनल है ना, ये तो सिंप्लीफाई हो ही सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, तो ये बनेगा -2/3 और √7 एज इट इज। क्लियर? नाउ अगर ये एक्सप्रेशन इक्वल है a प्लस बी रूट 7 के, तो अब आप ही बताओ a की वैल्यू किसके इक्वल है? a की वैल्यू इक्वल है 0 के। ठीक है, a और b रैशनल नंबर थे, a की वैल्यू इक्वल है 0 के, एंड अगर b की वैल्यू निकालनी हो तो b की वैल्यू इक्वल है -2√7/3 के। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टूडेंट, मैंने अभी एक चीज बोली थी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है। ठीक है, तो बता दें वो मेथड भी, इसके साथ अपन एंड करते हैं इसको, एक और मेथड। बट उससे पहले मैं होमवर्क दूंगा आपको, होमवर्क, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको घर पे जरूर करने हैं खुद को। होमवर्क लिखो आप रैशनलाइजेशन पे। आज की क्लास में हमने केवल रैशनलाइजेशन पे ही फोकस किया है। सी, द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इज दिस 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3। इसको आपको रैशनलाइज करना है, और ये एक्सप्रेशन अगर मान लो इक्वल है a माइनस 6√3 के। ओके, तो आपको इसमें एक मिनट, 6√3 और b√3, चलिए इसको 49, इसको मैं b√3 बना देता हूं। ये अगर इक्वल है b√3 के, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू b√3, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, ये आपका होमवर्क नंबर 1 है। ठीक है, आपको a और b की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, एक और होमवर्क के लिए क्वेश्चन देना बनता है। ठीक है, जो सेकंड में आपको दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ सी, सपोज 7 + √5 अपॉन 7 - √5। ओके, ये एक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन है 7 - √5 अपॉन, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है बिल्कुल डिट्टो है। आपको इसके अंदर भी a और b की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली प्रैक्टिस तो रैशनलाइजेशन की ही हो रही है, a और b की वैल्यू निकालना तो एक एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। ये इक्वल है इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की। ठीक है ना, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, और ये a एंड b है क्या, रैशनल नंबर्स है। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको क्लियर है। और मैं अब आपको इसी क्वेश्चन को, जो मैंने क्वेश्चन कराया है, एक और बस मेथड है सिंप्लीफिकेशन का, बाकी और कुछ नहीं है, कराते हैं। चलिए देखिए, हमने अभी रैशनलाइज करा ना, हम बिना रैशनलाइजेशन के इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। सी, क्वेश्चन क्या था, √7 - 1 अपॉन √7 + 1। ओके, माइनस इट वॉज √7 + 1 अपॉन √7 - 1। ओके, and what we have to do, we have to simplify this। okay, ये एक्चुअली वैल्यू थी a + b √7 के इक्वल, और हमारे को a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो वो तो हम कंपेयर करके लास्ट में निकाल ही लेंगे। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, हम डायरेक्टली कैसे इस तरीके के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द रैशनलाइजेशन। सी, अगर मैं डिनोमिनेटर्स में एलसीएम लूँ, देखो √7 + 1 और √7 - 1, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है ना, इनका अगर एलसीएम लूंगा तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा, तो मैंने इनके प्रोडक्ट को एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, तो एलसीएम क्या आ गया, √7 + 1 √7 - 1। ये बस आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट कर देगा। ठीक है, चलो एलसीएम ले लिया। अब जैसे आप दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही आप इसको सॉल्व कर लो। √7 + 1 √7 + 1 तो सेम है, √7 - 1 √7 - 1 से मल्टीप्लाई होके बना देगा इसको √7 - 1 का होल स्क्वायर, माइनस
यहाँ पर √7 - 1 √7 - 1 सेम है, तो ये बन जाएगा √7 + 1 का होल स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट्स, आपको सिंप्लीफाई करना है। इस a - b के होल स्क्वायर को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो √7 का स्क्वायर 7, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 इंटू √7 इंटू 1, नहीं लिख रहा मैं 1, आपको समझ में आ गया। 2 इंटू ए इंटू बी 2√7 होगा। हमने लास्ट क्वेश्चन में ही करा है इसको अभी। अच्छा, यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा 7 + 1 प्लस 2√7। ओके, एंड डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा √7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। क्लियर? ना अब आप आंसर चेक कर सकते हैं। सी इट्स 8 - 2√7, व्हेन दिस ब्रैकेट गेट्स ओपन इट विल बी -8 - 2√7 अपॉन √7 स्क्वायर इज 7, 1 स्क्वायर इज 1, 7 - 1 is going to be 6, this 8 and this -8 gets cancelled out and you will get the same expression, that is see -2√7 - 2√7, they can be added. Okay, so -2√7 - 2√7 if you add you will get -4√7। ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कैसे ऐड कर सकते हैं अपन। कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो सिंपल अपॉन 6, तो ये सॉल्व होके किसके इक्वल आया? इसके। ना हमारी राइट हैंड साइड क्या थी? राइट हैंड साइड में लिखा हुआ था a + b√7। ठीक है, इसको हर स्टेप में मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड थी। नाउ इन द फाइनल स्टेप अगर मैं दोनों तरफ कंपेयर करूं तो व्हाट आई विल गेट सी, इसको मैं लिखूंगा 0 प्लस -2/3√7, अभी बताया इसके बारे में। ठीक है ना, और ये इक्वल है किसके? a + b√7 के। सो द वैल्यू ऑफ a इज गोइंग टू बी 0 एंड द वैल्यू ऑफ b इज गोइंग टू बी द सेम एज -2/3√7। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको रैशनलाइजेशन जो प्रोसेस है सिंप्लीफिकेशन का वो समझ में आया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ मोर गुड क्वेश्चंस। हम और सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमारा ये सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक चलता रहेगा, हमको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी करने हैं और फिर हम कॉम्बिनेशंस यूज करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे सिंप्लीफिकेशंस के। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, मतलब ये जो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और इसका जो पार्ट है सिंप्लीफिकेशन, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो आप कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से कीजिए। ठीक है ना, प्लस माइनस की जो गड़बड़ आप लोग करते हैं वो आप यहाँ इंप्रूव कर सकते हैं कि वो गड़बड़ अब ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।